आदाब, मैं जमील अहमद प्राइम न्यूज़ इंडिया के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 1 सितंबर 2020 मदीना रिलीफ फाउंडेशन के जानिब से बेलगावी शहर में कोविड-19 के इलाज के लिए मदनी हाई स्कूल न्यू वैभव नगर को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया। इस अस्पताल की ओपनिंग सेरेमनी आज ही यानी 1 सितंबर को हुई। आज ही से इस अस्पताल में मरीजों के इलाज के जरिए खिदमत का काम अंजाम दिया जाएगा। आज बेलगावी शहर के मदीना रिलीफ फाउंडेशन की तरफ से मदनी स्कूल न्यू वैभव नगर को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया ताकि बेलगाम की आवाम को इस मर्ज से राहत मिल सके। आज यानी 1 सितंबर को इस अस्पताल की शुरुआत की गई। इस इफ्तिताही तकरीब यानी ओपनिंग सेरेमनी में बेलगावी के डीसी जनाब एमजी हिरेमठ साहब, कांग्रेस के एक्स एमएलए जनाब फिरोज सेठ साहब, अंजुमन इस्लाम के सदर जनाब राजू सेठ साहब, बीम्स के डायरेक्टर डॉक्टर विनय दास्तिकोम साहब और बेलगावी के डीएचओ जनाब शशिकांत मुनियाल साहब और बीजापुर से आए हुए एमएलए साहब और दीगर बड़े बड़े शख्सियत जिनमें उलमाए कराम मौलाना सलीम साहब, मौलाना मुजम्मिल साहब, मौलाना साजिद साहब, मुश्ताक अशरफी, अजीम पटवेगर, मतीन शेख अली, अकरम बाली कुंदरी, मुजम्मिल डोनी, सोशल वर्कर इमरान कित्तूर और अल इकरा की पूरी टीम जिनमें खुसूसन अब्दुल खादर घी वाले मौजूद थे। मदीना रिलीफ फाउंडेशन के इस बेहतरीन काम को मद्देनजर रखते हुए बेलगावी डीसी जनाब एमजी हिरेमठ साहब ने अपनी तरफ से पूरी तरह से सपोर्ट और साथ देने का भरोसा दिलाया। ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡಾಗ ಮದೀನಾ ಗ್ರೂಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನನಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು NGO ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏನು ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದೀನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೊರೋನಾ ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 12,000 ಸೋಂಕಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 9,000 ಜನ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 9,000 3,000 ಜನ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಶಹರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದು ಬರ್ಡನ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೀಪಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬೆಳಗಾಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನಿದಾವೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 30 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಸಿವಿಯರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಕೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೋವಿಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋ ಜನನು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅವರು ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ICMR ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಅವರು ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರಾಮ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಅಸಿಂಪ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಸುಮಾರು 2,000 ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದಲೇ 1,500 ಜನ ಅವರು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಮದೀನಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೈಪಾಯ್ he had come to my office. ನಾವು ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಯಾರೇ
ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ ಯಾವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ DHO ಮಂಗಳೂರು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ MLA ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯವರು ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ಅಂಡ್ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ತರ NGOs ಗ್ರೂಪ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗೋದು. ತಾವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಒಂದು ಮದಿನಾ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು, ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಮೊದಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹೊರಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಸಾವುಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೊರತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್. ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ DCOಗೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯು. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಧನ್ಯವಾದ. इसी तरह बेलगावी DC जनाब MG हिरेमठ साहब, बीम्स के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर विनय दास्तिको साहब, बेलगावी के DHO डॉक्टर शशिकांत मुनियाल इस काम को मुकम्मल करने में मदीना रिलीफ फाउंडेशन वालों की काफी मदद की। ये जो मदीना वेलफेयर ट्रस्ट इनके तरफ से जो कोविड केयर सेंटर यहाँ पे बनाया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। अभी मुझे पता चला है कि 20 बेड में इन लोगों ने ऑक्सीजन की सुविधा की है और बाकी बेड्स कोविड केयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा एक प्रयास है, क्योंकि सब जगह ऑक्सीजन की किल्लत है और पेशेंट्स जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, जो माइल्ड केसेस हो, वो यहाँ पे इस फैसिलिटी का जो है यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और इनको कोई भी और तकलीफ हो और कुछ भी इनको ज़रूरत पड़े तो कभी भी हम इनके सेवा में हाजिर रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आज के अपडेट क्या है सर? कुछ केसेस कम हो रहे हैं, डेथ भी कम हो रहे हैं, ऐसा कुछ आपके जरिए से? थोड़ा सा अभी लास्ट हफ्ते में जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, थोड़े केसेस डाउन ट्रेंड में है। होपफुली यही ट्रेंड आगे चलता रहेगा और जो है बहुत जल्द हम इस महामारी से जो है रिक्लूस पा सकते हैं। और कुछ सर लोगों को आपका मैसेज? बस यही है कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, हैंड सैनिटाइजेशन करते रहे, हैंड क्लीनिनेस मेंटेन करें, क्राउडेड एरियाज में जितना हो ना जाए और जो है डिस्टेंस बनाए रखें। यही है, इसी की अनलेस जब तक वैक्सीन नहीं आएगा या तो डेफिनेटिव मेडिसिन नहीं आएगा तब तक हम वी हैव टू डू दिस प्रोटोकॉल, यही करता रहना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल को एक अपील कीजिए सर, जो लोगों की हेल्प किस तरह करें, मिडिल क्लास गरीब जब आए आपको ज़रूरतमंद। नहीं, दे आर ऑल्सो डूइंग देयर वर्क, कर रहे हैं डेफिनेटली। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी खोलने के बाद जो है थोड़ा सिचुएशन ईज आउट हुआ है,
आगे जाके बाकी के प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होपफुली दे विल आल्सो टेक द क्यू एंड ओपन इट अप। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सब। On the head of the inviting for this COVID care. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಹತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು 25 ಬೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದು 25 ಬೆಡ್ ನಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ ಅದನ್ನು ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದ ಕೇರ್ ಆಗಿ ರಿಕವರಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ तो आइए नाजरीन, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज इंडिया। कोरोना वायरस की महामारी से परेशान और बीमार लोगों की मदद करने वाला इदारा अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम, जिनके सदर राजू सेठ साहब, जनरल सेक्रेटरी समीउल्लाह माड़ीवाले, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गफूर ही वाले, हनीफ सिद्दीकी साहब, अब्दुल खादर ही वाले, अमीन पट्टेकेरी, अशफा गोरी, बाबूलाल मुजावर, आप इनसे राब्ता कायम करें। जैनुमुल फाउंडेशन, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इंजीनियर शाहनवाज एन मुल्ला, फाउंडर चेयरमैन जैनुमुल फाउंडेशन एंड जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फर्म। तमाम खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस न्यूज बुलेटिन के दूसरे भाग में। आइए बढ़ते हैं खबर के अगले हिस्से में। इस अस्पताल की ओपनिंग सेरेमनी में काफी तादाद में लोग मौजूद थे। अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ अपने पूरे प्रोटेक्शन के साथ मरीजों के इलाज के लिए तैयार है। प्रोग्राम के आखिर में मदीना रिलीफ फाउंडेशन ने आए हुए खुसूसी मेहमानों को अस्पताल का दौरा कराया। इस पूरे इंतजामात के निजाम को देखते हुए जनाब डीसी साहब, फैरोज सेठ साहब और राजू सेठ और बीजापुर के एमएलए साहब ने खुशी का इजहार करते हुए अपना साथ देने की बात कही। Dr. Habibullah Athar sahab, he's from Bijapur. We actually got inspired by him. Al-Amin mein. And they are doing a really tremendous job, mashallah. सर, अभी जो प्रोग्राम हुआ, जो ओपनिंग हुई, उसके बारे में आप बताइए कि कितनी खुशी की बात है तो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के लिए फायदेमंद है। Definitely, it is a really a great job done by the Medina Group, because they are doing a marvelous job since beginning, because they have helped the administration during flood time. Now also they came forward to help the people who are suffering from this COVID, and they have maintained a good COVID care center. The environment इतना अच्छा है इधर, environment से ही वो अच्छा हो जाए। हाँ, थैंक यू। और कुछ आप लोगों को अपील हॉस्पिटल के बारे में? No, people should make use of this facility, because it's the facility, everything is here. Oxygen beds are also there, doctors are there, qualified doctors are there, they can make use of this. और ये अंजुमन इस्लाम, he is also doing the same work. Yeah. They are also doing a good job, and with regard to oxygen cylinders, they are doing really a very good job, and also with regard to dead body management, they are really doing, they are supporting the district administration like anything. I really thank them for their good सबसे बड़ा सपोर्ट आपका है, आप नहीं, बन के आए, नहीं। आपके कोऑपरेट I have से to बड़े support काम that. हुए। ये हम आपका पूरे मीडिया की तरफ से और हमारे फाउंडेशन की तरफ से हाँ। सबके तरफ से हम आपको सलाम करते हैं। Thank you very much. हमारे एक्स एमएलए साहब है फिरोज सेठ साहब, ये भी उस हॉस्पिटल के बारे में 2 बातें बताएं। मुसीबत के वक्त पे जो लोगों के काम आता है वो फरिश्ता बन के आता है, और इसी को हम फरिश्ता कहते हैं और मानते हैं। चाहे फिर वो आम आदमी हो, डॉक्टर हो, कोई ऑटो चला के वक्त पे पेशेंट को पहुंचाने वाला हो, कोई तसल्ली की 2 बातें करने वाला ही क्यों ना हो, ये सभी काम
नाम, जात, भाषा पूछ के नहीं की जाती, क्योंकि हम जब मानते हैं कि हम सबको बनाने वाला, इस दुनिया को चलाने वाला एक ही है, तो आपस में रिश्ते में हम सब भाई बहन होते हैं। और ऐसे वक्त पे अपने वक्त की कुर्बानी देना, अपने दौलत का एक हिस्सा खर्च करना, अपने आप को मुश्किलात में डाल के भी दूसरों की मुश्किल आसान करने की कोशिश करना, ये बेशक अल्लाह के राह पे चलने का काम है। और मैं ये नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे ही काम करते रहो और अल्लाह को राज़ी करने के लिए करो। बाकी किसी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। जो भी दरवाजे पे आएगा, अगर नहीं आ सकता तो हम उसके दरवाजे पे जाके उसका इलाज करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जैसे डीसी साहब ने कहा, नीचे भी उन्होंने बात की कि एडमिनिस्ट्रेशन इन बातों से बड़ा खुश है, सेटिस्फाइड है, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें जो भी टेक्निकल या एक्सपर्ट एडवाइस या एक्सपर्ट से सपोर्ट लगता है वो इंशाल्लाह वो ज़रूर करेंगे और आपका साथ देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, वो खुद आके यहाँ जो कह रहे हैं वो, और हम इस बात का इस्तेमाल करके हम लोगों तक पहुँच के लोगों में का जो डर है वो थोड़ा कम करा के, इतना हमारी जिम्मेदारी बनती है। लोगों से एक ही गुजारिश है कि घर में बैठ के मामूली है, बुखार है, सर्दी है, थोड़ा सा दर्द है करके मत बैठिए। आप 4-8 दिन ऐसे ही निकालेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, ना सिर्फ आपके लिए लेकिन आपके आसपास में जितने हैं उन सब की जान को आप खतरे में डाल रहे हैं। मेरी अजीज़ाना गुजारिश है सबसे कि थोड़ा भी आपको लगता है कि बेचैनी है तो अपने आप को टेस्ट करवा लीजिए। आप अंजुमन को कांटेक्ट कर सकते हैं, मदनी को कांटेक्ट कर सकते हैं, जमात के बड़े हैं, जमात के आपके उलमा हैं, इन सब से हमने एक कोऑर्डिनेशन टीम बनाई है। और आप किसी को भी कांटेक्ट करके, और ऐसे वक्त ये मत देखिए कि आप किसकी मदद कर रहे हैं, आप एक अपने भाई की, एक दूसरे इंसान की मदद करें, इतना ही सोचना काफ़ी है। थैंक यू। एक मिनट, इस फाउंडेशन की तकरीब में आप थोड़ा लोगों को बताइए आपके बीजापुर के हाल क्या है और यहाँ क्या मैसेज देना चाहते हैं। बीजापुर में हमारा तो दवाखाना चले, ये बेलगाम का है। हमें हर बार बीजापुर से बेलगाम को बताने आते थे, ये भी दवाखाना खोलें, अंजुमन वाले हो, पूरे टेस्ट वाले हो, पूरे हमारे लोग हो, जमात वाले हो, आलिमा हो, सब भी मेहनत कर को घर में बैठू न को, किसी भी सिर दर्द हो, सर्दी हो, बुखार हो, आओ बिन डरा को बता को अपना इलाज कर ले को जाओ। घर में बैठे तो ये बीमारी बहुत बढ़ने वाली है, डरो न को, बिन डर फिरो, आओ दवाखाने में मिलो, डॉक्टर आए हमारे जमात वाले हैं, किसी भी मिल को उनका इलाज करा लो। दवाखाना खोलें पूरे कौम के वास्ते, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये बहुत बहुत तुमना बेलगाम वाले मुबारकबाद देते हैं। ये ऐसा से थोड़ा खिदमत का मौका मिल रहा है, खिदमत करो, अल्लाह करने का मौका। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये हॉस्पिटल जो खुला है एक हॉस्पिटल की तरह, और अंजुमन पहले से ये काम कर रहा है, और गली वाइज मेडिकल कैंप बना कर ये भी जद्दोजहद चली है। ये सब मिलकर जो जद्दोजहद चली है ये आवाम की खिदमत के लिए है। इसके बारे में हमारे अंजुमन के सदर जनाब राजू सेठ साहब कुछ बातें बताएंगे। सभी इदारे, सभी इंस्टीट्यूशंस एक ही मकसद लेके चले हैं कि हमें बीमारी को कैसे हराएं। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे अंजुमन इस्लाम हो, मदीना रिलीफ हो, फाउंडेशन हो, अल इकरा हो, जो भी इदारे हैं, हम सब मिलकर यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग कैसे आराम से रहे, इस शहर के वासी, पूरे ज़िले के वासी आराम से अपने घर पे कैसे रहे, परेशानी के बगैर। और ऐसी जब हॉस्पिटल है, मेडिकल कैंप्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब इंतज़ामात होते जाएंगे, आप ज़रूर देखेंगे कि ये बीमारी हमारे पीछे रह जाएगी। हम सब मिलके जो मकसद से चले हैं, हम दुआ करते हैं कि
ऊपर वाला हमें कामयाबी दे और मदीना रिलीफ फाउंडेशन को कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन शोएब मक्तेदार के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ इंडिया। जय हिंद।